اسٹیشنری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہڑتال پر اردو بازار کے تاجر دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز گروپ کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی، جبکہ صدر انجمن تاجران اردو بازار ابوذر غفاری گوہر ہڑتال کے حق میں نہیں ہے، اور صدر ابوذر غفاری گوہر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہڑتال کے معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہڑتال کے معاملے پر متاثرہ اسٹیشنریز کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہے۔ ایسی نامکمل اور جلد بازی کی ہڑتال الٹا نقصان دے گی۔ صدر ابوذر غفاری گوہر کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ اسٹیشنری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہڑتال پر اردو بازار کے تاجر دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز گروپ کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز کی جانب سے کیا کہا گیا، سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اعلان کر رکھا ہے کہ بدھ کے روز 7 اگست کو اردو بازار کے متعلقہ تمام مارکیٹیں بند رہے گی۔ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو پھر یہ ہڑتال غیر معینہ مدت کی ہو سکتی ہے۔ تو یہ موقع تھا صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز گروپ کا، جنہوں نے ہڑتال کی کال دی ہے، جبکہ دوسری جانب صدر ابوذر غفاری گوہر ہیں جو کہ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ دونوں تاجر تنظیموں کا کیا موقف ہے، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں شہزاد خان عبدالی سے۔ جی شہزاد، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، اسٹیشنری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کا یہ معاملہ ہے جس پر صدر آل پاکستان انجمن خالد، لیکن صدر اردو بازار لاہور ابوذر غفاری گوہر اس کال سے متفق نہیں ہے اور انہوں نے اس کال کی تائید نہیں کی۔ اس حوالے سے ابوذر غفاری گوہر یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے متاثرہ فریق اسٹیشنرز کو یا اردو بازار میں دیگر ٹریڈ کرنے والے تاجران کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اس طرح کی جلد بازی کی ہڑتال فائدے کی بجائے الٹا نقصان دے گی۔ اردو بازار کے صدر ابوذر غفاری گوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ گوہر صاحب، آپ ہڑتال کے حق میں کیوں نہیں ہیں؟ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، اردو بازار جو ہے یہ پورے پاکستان کو تعلیمی سہولیات فراہم کرنے والی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اور یہاں پر کوئی ایک ٹریڈ نہیں ہے، 12-13 ٹریڈز ہیں۔ اس میں قرآن مجید والے بھی ہیں، اسلامی کتابوں والے بھی ہیں، جنرل کتابوں والے بھی ہیں، ٹیکسٹ بک پبلشرز بھی ہیں، اور ٹیکسٹ بک بورڈ کے پبلشرز بھی ہیں، اور جو بہت سارے ٹریڈز ہیں، اسٹیشنرز بھی ہیں، آفس اسٹیشنرز بھی ہیں، لفافے والے بھی ہیں، لیکن یہ سب کو 12-13 ٹریڈز بنتی ہیں۔ تو یہ جو ہڑتال کا اعلان کیا ہے ایک خود ساختہ صدر، جنہوں نے ایک ہفتہ پہلے ایک ہڑتال کا پمفلٹ دیا بازار میں، اور اس میں جو ایک عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ٹریڈ کو ان کے نمائندوں سے مشاورت نہیں کی گئی۔ کی ہڑتال کو پھر آپ کامیاب نہیں دیکھتے؟ دیکھیں، جب نہ انہوں نے کسی اسلامی کتابوں والے سے بات کی، نہ قرآن والوں سے بات کی، نہ پبلشر سے بات کی، نہ ایون اسٹیشنری والوں سے بھی نہیں بات کی۔ اسٹیشنری والے جو اسٹیشنری ایسوسی ایشن ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ بھی سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ ہڑتال کل اردو بازار پھر آدھا تتر آدھا بٹیر ہوگا۔ سر، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جب ایک ہفتہ پہلے ہڑتال کا اعلان کیا گیا، اس کے بعد بازار میں کوئی سرگرمی نہیں، کسی سے کوئی بات نہیں کی گئی، تو آدھا میں سمجھتا ہوں کہ کل 90% بازار کھلے گا۔ تو یہ ہڑتال بری طرح ناکام ہوگی۔ یہ خالد پرویز صاحب کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ سیاست کرتے ہیں، وہ ہم ہمارا ہمیشہ سے یہ بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ خدمت اور کاروبار کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اس ٹیکس کے خاتمے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے، کیونکہ جو اسٹیشنرز ہیں وہ تو چاہتا ہے یہ ٹیکس ختم ہو۔ دیکھیں جی، میں سیدھی بات کروں گا، یہ ٹیکس ختم کرنے کے لیے ہڑتال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہڑتال اگر کرنی بھی ہے تو ہڑتال کر کے تو گھروں میں نہیں بیٹھنا، آپ ایک ریلی کی صورت میں نکلیں، جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں، آپ کو اسلام آباد جانا پڑتا ہے وہاں جائیں۔ یہ ایک بچے پر ایک ظالمانہ ٹیکس ہے، اور ہماری حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم تعلیم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تو کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ ایک قلم دوات پہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ آپ نے اردو بازار کے صدر کی گفتگو سنی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے لائحہ عمل یہ ہوگا کہ تمام اسٹیشنر، دیگر جو فریقین ہیں، جو دیگر ٹریڈز ہیں، وہ اکٹھے ہوں اور مل کر۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ شہزاد خان عبدالی تھے اور تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔
जमात इस्लामी का महंगाई ओवर बिलिंग IPPs के खिलाफ लाहौर में धरने का मामला है। अमीर जमात इस्लामी ने लाहौर में 11 अगस्त को धरना देने का ऐलान कर दिया है। लाहौर की तंजीम को धरने के इंतजामात जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हसन अली हमारे साथ हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई, बिजली के ज़ायद बिलों और IPPs के खिलाफ जो धरनों का सिलसिला जारी है, उसमें अब जो है वो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने लाहौर में 11 अगस्त को धरना देने का ऐलान जो है वो कर दिया। इससे कबल जमात इस्लामी ने रावलपिंडी और कराची में जो है धरना दिया हुआ है, जबकि जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से लाहौर की तंजीम को धरने के इंतजाम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इसके साथ साथ ज़राए की जानिब से भी बताया जा रहा है कि 14 अगस्त के बाद मुल्क की शटर डाउन हड़ताल पर ताजरों और कारोबारी बरादरी से भी जो अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान वो मुशावरत करेंगे, जबकि लाहौर में धरना जो है गवर्नर हाउस के बाहर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तबादलों से पाबंदी उठा ली। असातिज़ा 12 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकेंगे। 1 से 5 सितंबर दरख्वास्तों की तस्दीक की जाएगी। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं? जी, पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तबादलों पर से पाबंदी हटा ली है। असातिज़ा 12 अगस्त से 31 अगस्त तक जो है ऑनलाइन दरखास्तें जमा करा सकेंगे। 1 से 5 सितंबर तक दरखास्तों की तस्दीक की जाएगी। 9 सितंबर तक असातिज़ा को अपील के लिए हक दिया जाएगा। 10 और 11 सितंबर को अपील पर फैसले दिए जाएंगे, जबकि तबादलों के आर्डर जो है 13 सितंबर को जारी किए जाएंगे। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तबादलों से पाबंदी उठा ली। असातिज़ा 12 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकेंगे। 1 से 5 सितंबर दरख्वास्तों की तस्दीक की जाएगी। आबादी पर काबू पाने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। महकमा बहबूदाबादी ने मंसूबे का PC1 PND बोर्ड को इरसाल कर दिया है। महकमा बहबूदाबादी ने आबादी पर काबू और मैनेजमेंट पर 1 अरब रुपए का तखमीना लगाया है। क्या इकदाम किए जाएंगे, इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, महकमा बहबूदाबादी की तरफ से ये एक प्रोजेक्ट का PC1 बनाया गया। इसके लिए हुकाम के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हदायत है, जो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब से कुछ फैमिली प्लानिंग के हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मुलाकात की थी। तो उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी और नए इनिशिएटिव शुरू करने के हवाले से कुछ सिफारिशात जो है वो पेश की। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला पंजाब ने ये हदायत जो है वो महकमा बहबूदाबादी को दी, जिसकी मद में अब ये प्रोजेक्ट का PC1 जो है वो मैनेजमेंट कंट्रोल के हवाले से जो आबादी को कंट्रोल करना है उसके हवाले से तैयार किया है। और उसके लिए PND बोर्ड से 1 अरब रुपए के फंड्स की डिमांड की गई। अब इसमें होगा ये कि सबसे पहले तो महकमा बहबूदाबादी के जितने भी सेंटर्स हैं लाहौर और पंजाब भर में उसको रिवैम्प किया जाएगा और वहाँ पे मुफ्त जो अद्वियात मनसूबाबंदी के हवाले से वो वहाँ पर फ्राहम की जाएंगी। और इस हवाले से आगाही जो है वो भी खास तौर पर देने के लिए एक प्लानिंग जो है वो की जाएगी, जिसके तहत अब ये प्रोजेक्ट जो है वो PND बोर्ड इसको अप्रूव करेगा और उसके बाद इस पर अमल दरामद का आगाज जो है वो कर दिया जाएगा। और ये इस मनसूबे का आगाज जो है रमज़ान वाली साल में ही किया जाएगा, क्योंकि इस पर वज़ीर आला पंजाब की हदायत है, क्योंकि मुख्तलिफ NGOs और जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनकी तरफ से सिफारिशात थी कि पंजाब हुकूमत आबादी के तनासुब आबादी को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम जो है वो करे और इसके लिए महकमा बहबूदाबादी का जो सेंटर है उसको भी मजीद फाल जो है वो किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। जिना अस्पताल सफाई के ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में प्रिंसिपल ऑफिस में हंगामा आराई और कार्य सरकार में मदाखलत की दफात शामिल की गई हैं। इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी। जी, जिना अस्पताल में सफाई के ठेकेदार के खिलाफ प्रिंसिपल ऑफिस में हंगामा आराई और कार्य सरकार में मदाखलत पर थाना गार्डन टाउन में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस हारिस भट्ट की मुद्दईयत में मुकदमे का इजलास किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो सफाई का कॉन्ट्रैक्टर है जिना अस्पताल का केयर्स नामी कंपनी का मालिक अंजम सदीक, उसको रवां माली साल के दौरान जो है वो सफाई का ठेका नहीं मिला, जिस पर वो मुश्तिल होकर उसने प्रिंसिपल ऑफिस में हंगामा आराई की। वहाँ पे जो है वो मौजूद जो फाइनेंस का अमला है, दीगर डॉक्टर्स हैं, उनको न सिर्फ असले के जोर पर जो है वो संगीन नताइज की धमकियां दी,
बल्कि उनको जो है वो शदीद हरासा करने की कोशिश की, जिस पर जो है वो कारी सरकार में मुदाखलत और हंगामा राई पर अंजम सदीक के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिर चौधरी थे, अपडेट कर रहे थे। सरकारी महकमों की हुक्मरान जमात के अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली को नो लिफ्ट। हुक्मरान जमात के अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली शदीद इज़्तिराब का शिकार हो चुके हैं। अवामी मसाइल के हल में सरकारी महकमे ही बड़ी रुकावट बनने लगे। इस हवाले से लीगी रहनुमा क्या कहते हैं, राव दिलशाद हुसैन से जान लेते हैं। जी राव दिलशाद। शहर भर में मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपने दफातर में खुली कचहरियों का इनकाद भी करते हैं और शहरियों के मसाइल भी सुनते हैं, जबकि शहरियों के मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को फ़ोन भी करते हैं ताकि शहरियों की बर वक्त जो दरख्वास्तें उनको शिकायत को निपटाया जा सके। लेकिन सूरत हाल इससे बिल्कुल बरअक्स है। आपको बताएं कि लीगी रहनुमाओं का ये कहना है कि ख़ास तौर पर हुक्मरान जमात के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और लीगी रहनुमाओं की जानिब से सरकारी महकमों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जा रही और ना ही कोई मुफाद आमा से मुतल्लिक जो शिकायत हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। चूँकि इस हवाले से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली बाज़ शिकायत पर अपना जो लेटर पैड है उस पर जो है वो रेफरेंस बनाकर भी भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद शहरियों की शिकायत का अजाला नहीं किया जाता। तो यूँ सरकारी महकमे ही अवामी मसाइल के हल में बड़ी रुकावट बन चुके हैं। सूरत हाल इस कदर भयानक है कि आइंदा जो इंतखाबात होंगे उसमें मुस्लिम लीग नून को इस हवाले से शदीद जो नुकसान होगा। इसी वजह से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो है वो इज़्तिराब का। ठीक है, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं वाल्टन रोड की तामीर बहाली के लिए बेस वक्त जारी है। एडीए नाले की मुंतकली के बाद वाल्टन रोड तामीर के लिए क्लियर कर दी गई है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे दुर्र नायाब। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वाल्टन रोड पे मौजूद हूँ और वाल्टन रोड प्रोजेक्ट जो है वो अगर बात की जाए जारी तरक्याती मनसूबों में तो शहर का इस वक्त सबसे बड़ा जारी तरक्याती मनसूबा है जिसकी कंप्लीशन का पूरे लाहौर को इंतज़ार है। बहुत बड़ा जो है ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें पहले बात की जा रही थी कि बिफोर टाइम इसको अप्रैल में मुकम्मल किया जाता, फिर मई, फिर जून, अब जुलाई के बाद अगस्त आ चुका है और इसकी डेडलाइन जो है वो थोड़ी आगे जा रही है। अभी भी कहा जा रहा है कि अक्टूबर में शायद ये इस हद तक कंप्लीट हो जाए कि इसके ऊपर से ट्रैफिक गुजर जाए। मेरे साथ इस वक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसिफ इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि सीबीडी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं और इस प्रोजेक्ट को भी देख भी रहे हैं। आसिफ साहब, वज़ीर आला यहाँ पे आई और उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक आपको कहा गया कि आप कम से कम यहाँ पे ट्रैफिक सर्कुलेट कर दें, चला दें और नीचे जो अंडरग्राउंड आपने नाले को डाइवर्ट करना था वो भी डाइवर्जन कामयाबी के साथ हो गई है। अब आप कितना काम किस तरह देख रहे हैं, साथ ही अब ये फ्लाईओवर को भी बताइएगा, ये भी कम। अच्छा जी, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स थे। वन कंपोनेंट वाज सीवरेज लाइन, मेन सीवरेज लाइन, वन वाज डाइवर्जन ऑफ एडीए नाला, तीसरा पार्ट था कि झील चौक का था, चौथा पार्ट था कि आपने ये रोड्स की वाइडनिंग करनी थी। अब हम जहाँ पे खड़े हुए और काम भी पीछे भी देख रहे हैं कि ये जो मेन कैरेज वे है ये 3x3 है और जो सर्विस रोड है वो 2x2 है बोथ साइड्स। इन द मीन टाइम अगर आप देखें तो नाला जो है ऑलरेडी हम डाइवर्ट कर चुके हुए हैं, एडीए नाला। ब्रिज का सब अच्छा, ब्रिज आप देख सकते हैं कि ब्रिज का काम 100% कंप्लीट हो गया है, उसकी जो स्ट्रेंथ अचीव हो गई हुई है। अब सिर्फ जो है उसकी शटरिंग है, बिकॉज ये स्क्यू में ब्रिज था जैसे हमने घोड़ा चौक पे किया था, शटरिंग खुल रही है, हार्डली 1 हफ्ते में शटरिंग खुल जाएगी। तो उसके बाद जब ये एसफॉल्ट स्टार्ट होगी इस पैच की साथ हम ब्रिज को भी एसफॉल्ट करके और ओपन कर देंगे ट्रैफिक के लिए। बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल जो डायरेक्ट। ठीक है दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया।